morning students. I am Simia Lal, physics teacher from JPS Academy. Welcome to my YouTube channel. Students, we are doing unit 5, that is system of particles and rotational motion. So today we will do this article, that is a center of mass for a two particles system. So yesterday we have discussed about the system of particles. अब हम एक बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स को कंसीडर करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे कि दैट द बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो वी टेक इट एज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. Then center of mass we have discussed. Center of mass, it is a point lying in a system where whole mass of the body is supposed to be concentrated. Now in this article we will find out an expression for the center of mass. और center of mass को locate करने के लिए हम क्या find out करेंगे? We will find out the position vector. तो हम इस आर्टिकल में क्या find out करना है? We will find out the position vector for the center of mass. And for which kind of the system? For two particle system. अगर system के अंदर कितने particles हैं? 2 particles हैं, तो उस system के लिए what will be the position vector for the center of mass? This we will find out. So for this, let us consider a system having 2 particles which are let us consider. So हमने यहाँ पर एक system ले लिया जिसके अंदर 2 particles हैं, let it be point A and B, जिनके masses जो है वो M1 and M2 है. So let us consider the 2 particles. Their position vector from the origin is represented by R1 vector, and the other particle whose position vector is represented by R2 vector. Okay, so this is A point and B point. Let it the particle A and the particle B, whose mass is M1 and its mass is M2. Okay, now these 2 particles which are in the system, let us consider that some external forces are acting on the particle. हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर कुछ बाहर से कुछ forces लग रहे हैं, external forces लग रहे हैं, F1 and F2 forces जो है वो external forces जो है वो act कर रहे हैं. And also these particles जो है ये भी एक दूसरे के ऊपर force लगा रहे हैं, मतलब there are also the internal forces. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं external forces भी लग रहे हैं और कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस भी लग रहे हैं. तो यहाँ पर इंटरनल फोर्सेस जो है वो पेयर्स में लग रहे हैं. तो इस केस में इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ए पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ यहाँ पर, लेट इट बी F1 2. और सेकेंड पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स ए, सो लेट इट बी F2 1, फोर्स on second particle due to first. Now these two internal forces, जो ये दोनों internal forces हैं, by Newton's third law of motion के according, ये दोनों forces जो हैं वो क्या हैं? They are acting in pair. They are equal and opposite. So by Newton's third law of motion, these two forces are equal and opposite. So in this case, if these two forces are equal and opposite, so we get that the total of these two forces is equal to 0. जो internal forces हैं वो क्या हो गए? वो 0 के equal हो गए. No internal forces cancel out कर रहे हैं. So the total force that is acting on the system is only due to the एक्सटर्नल फोर्स. किसके कारण लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो है वो सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं. तो टोटल फोर्स हम यहाँ पर लिखेंगे, टोटल फोर्स जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, मीन्स ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग. सो टोटल फोर्सेस F1 प्लस F2 के इक्वल है. नाउ here the 2 particles A and B, I can write like this way, as we know this expression by Newton's second law of motion. Newton's second law of motion जो है F is equal to mass into acceleration, and there is one more formula that
फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। हम dp बाई dt भी लिखते हैं, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो किसके इक्वल है, अगर मैं मोमेंटम को लिखूं मास इनटू वेलोसिटी, सो इट विल बी लाइक दिस, एंड फोर्स विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू मास, और मैं v को अगर लिखती हूँ r की टर्म्स में तो ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव आ जाता है d स्क्वायर r बाई डी टी स्क्वायर। मीन्स हम फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं m d स्क्वायर r बाई डी टी स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैंने एक एक्सप्रेशन बताया है कि फोर्स को आप ऐसे भी लिखते हो। ओके, नाउ अब हम इस फॉर्मूले को हमारा जो इक्वेशंस जो हम लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। As we know that the total force acting on the particle is represented by F, and which is to be equal only to the external forces, जो कि सिर्फ external forces के सम के इक्वल आया है। internal forces जो है वो जीरो हो गए हैं। then you will write for the first and the second particle separately, उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे m1 d स्क्वेयर r1 बाई डी टी स्क्वेयर प्लस m2 d स्क्वेयर r2 बाई डी टी स्क्वेयर। तो f जो है वो आपके पास ही इसके इक्वल आ गया, m1 d स्क्वेयर r1 बाई डी टी स्क्वेयर, m2 d स्क्वेयर r2 बाई डी टी स्क्वेयर के इक्वल आ गया। सो नाउ हेयर इन दिस एक्सप्रेशन, अब ये m जो है वो इसके इक्वल है, और यहाँ पर अगर मैं d स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर को कॉमन ले लेती हूँ, डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर को कॉमन ले लिया, और ये अंदर जो एक्सप्रेशन है हमारे पास m1 स्केलर है r1 प्लस m2 r2 के इक्वल आ गया, राइट। डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर को हमने कॉमन लिया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर फोर्स क्या था, फोर्स था टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। टोटल फोर्स जो है वो सिस्टम के ऊपर अगर एक्ट कर रहा है। नाउ इफ वी कंसीडर कि जो इस पार्टिकल, ये जो टू पार्टिकल सिस्टम है, इसका जो सेंटर ऑफ मास समवेयर यहाँ कहीं लाई करता है, और जिस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, वो हमने कंसीडर कर लिया लेट इट बी कैपिटल आर, लेट इट बी कैपिटल आर। सो इन दिस केस जो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन तो यही थी कि ये वो पॉइंट होता है सिस्टम के अंदर जहाँ पर हम टोटल फोर्स अगर उस पॉइंट के ऊपर ही एक्ट करते हैं तो सेम इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखती हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन जो है बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करती है। तो ये वाली इक्वेशन में अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर अप्लाई करती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, पहले तो मैं लिखूंगी टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो जहाँ पर ये टोटल मास इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर लोकेटेड भी है, इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड है m, ठीक है। और एक्सेलरेशन के लिए a एक्सेलरेशन अगर मैं मानूँ और a को मैं इस तरीके से लिखती हूँ डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, और वो अभी मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन को हम पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में लिखते हैं तो वो डबल डेरिवेटिव हो जाता है, दैट इज इक्वल टू द डबल डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर। सॉरी आपके अभी रीजन में नहीं आया, मैं इसको दोबारा से कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं कह रही थी कि फोर्स जो है वो यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन की अगर मैं लिखती हूँ कि टोटल मास हो गया m और एक्सेलरेशन हो गया a, एक्सेलरेशन क्या हो गया a। अब यहाँ पर a की जगह मैं उसको पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में भी लिख देती हूँ, तो यहाँ लिखूंगी डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर r क्या है, पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, तो f जो है वो किसके इक्वल आ गया, m डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, ब्रैकेट में m1 r1 प्लस m2 r2 के इक्वल। अब आप इस कैपिटल M को इधर ले जाओ, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, जहाँ पर ये कैपिटल M क्या है, ये सिस्टम के टोटल मास है। जिस सिस्टम के अंदर टू पार्टिकल्स हैं, जिस सिस्टम के अंदर टू पार्टिकल्स हैं, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है। आप इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं। नाउ यू कैन कंपेयर दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यू विल गेट r, दिस r विच इज द पोजीशन वेक्टर फॉर द सेंटर ऑफ मास। इसको मैं रब कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो
पोजीशन वेक्टर है फॉर द सेंटर ऑफ मास, वी गेट दिस फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 इज इक्वल टू कैपिटल M। और ये कैपिटल M क्या था? टोटल मास था सिस्टम का, जिसको मैं ये भी लिख सकती हूँ अपॉन में, यहाँ पर कैपिटल M की जगह क्या लिख सकते हैं? m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन। So this is the position vector for the center of mass.